तो वहाँ से चल करके इस स्टेज पे आना, वो भी तब जब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन था पूरे वर्ल्ड के लिए। हर युग में रिसोर्सेज की कमी होगी। आज इंडिया के जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन वर्ल्ड में किसी और नेशन में नहीं होते हैं, चाइना में नहीं होते हैं, यूएस में नहीं होते हैं। जो नाटो कंट्रीज हैं उनके प्रेसिडेंट आते हैं तो उनको यूपीआई दिखाया जाता है तो वो चकित रह जाते हैं कि ये क्या है। राहुल गांधी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं और डिमोनेटाइजेशन के लिए तो जो कहते हैं हम सब जानते हैं। उसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर हर चीज़ पे कितना कंट्रोल आया है। और उनको भी ये रियलाइजेशन हो रहा है कि भैया इंडियन इकॉनमी जो है 2013 में जहाँ थी वहाँ से काफ़ी आगे चली गई है। तो ये चीज़ आती कहाँ से, समझ नहीं है। तब तो ये हाल है कि हम 10 नंबर की इकॉनमी से 5 नंबर की इकॉनमी में चले आए। हेलो एंड वेलकम टू द कॉफी क्रॉनिकल्स फ्रॉम द पैम्फलेट। मैं हूं निर्वा मेहता। मैं हूं शिव। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने थर्सडे को एक वाइट पेपर ऑन इंडियन इकोनॉमी पब्लिश किया था, शेयर किया था इन द पार्लियामेंट, वेयर दे टॉक अबाउट द 10 years ऑफ यूपीए गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 to 2014, the scams that were unearthed during those 10 years, and the subsequent 10 years of Modi government, how we went from an extremely fragile economy to one of the fastest growing economies in the country. हमने पहले 2 parts में, the paper is divided into 3 parts, और हमने पहले 2 videos में we discussed the 10 years of UPA and the scams. In the third part we discussed the how Modi government ने कैसे ये crisis में से financial crisis में से the mess was resolved and how we were able to bring back the confidence of investors, of the people, and how things went little smoother. शुरू करते हैं कि obviously जैसे कि हम देखें कि एक लीगेसी यूपीए गवर्नमेंट को मिली थी जो वाजपेयी गवर्नमेंट छोड़ के गई थी। इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग ऑन दैट लीगेसी, दे नॉट जस्ट स्टैग्नेट किया, उन्होंने वहाँ से खराब ही किया। So the Modi government had a dual task of not only to bring it back to the level that Vajpayee government had left, but also to take it further. And इसमें तो एक decade loss हो चुका था आपका। So the world has changed. जहाँ पे न्यूज़ साइकिल 24 घंटे में बदल जाती है, इनफैक्ट अब तो 24 घंटे भी नहीं लगते हैं। तो in that case 10 years is a long time for anything to happen. It's like a lifetime, right? So having said that, I think let's start with some major reforms. एक तो ये होता है कि because after a long time the NDA government was where the BJP was the single largest party, and not just single largest party, it was the बहुमत. They had crossed the majority mark, which makes a lot of difference. जिसकी की आशा बहुत कम लोगों को बहुत कम लोगों को आशा थी, which is I think because it was a clear majority, a lot of reforms और जो भी policy decisions वो लेना चाह रहे थे वो ले पाए। कई बार होता है कि coalition, while you may be in the coalition, कुछ ना कुछ होता है कि there may be slight arm twisting, स्लाइट की नहीं हो सकता। इट्स देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, बट पूर्ण बहुमत का ये फ़ायदा था। 19 में उससे भी ज़्यादा आया और अब लग रहा है कि 24 में 400 पार कोलिशन एंड 370 द बीजेपी इज एमिंग फॉर। So one of the things is कि because of the present बहुमत they were able to manage that. So we went from the fragile 5 economies to the fastest 5 economies, and now we are soon to be posed to be the 3rd largest economy in the world. As student of economics and finance, this makes me extremely proud just to see things flourish. One of the major things that Modi government did as soon as they came to power, जैसे ये आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, the first time it came was when during the digital economy, कि हमें digital is the next step. It takes vision to think कि 10 steps ahead कि क्या होगा future में। आज I cannot imagine my life without the UPI. एक absolute revolution हो गया है कि आप
बिना कैश के महीनों जी सकते हैं, चल सकते हैं। योर लाइफ कैन गो ऑन विदाउट मच हैसल. So that is one of the things कि JAM, that is what they call it also, कि जनधन, आधार and mobile. How do you see that having played the transformative role in Indian economy? देखो 2014 में अब तो इस पे बहुत बात हो चुकी है। 2014 में जब मोदी सरकार बनी, पहली मोदी सरकार जब बनी, तो एक हम सभी जानते हैं जिस तरह की इकॉनमी थी तब, और हर लिहाज से, पॉलिसी के लिहाज से, पॉलिसी पहले से जिस पर बहुत बातें हुई हैं, उसके बाद ये जो इकॉनमी को लेकर के आत्मनिर्भरता जो होती है ना, उसको ग्लोबल इकॉनमी तब ट्रेंड था, इन द सेंस कि सबके लिए बड़ा हार्ड था कि वो यूएस इकॉनमी से खुद को डीकपल करे, कठिन था, इम्पॉसिबल था। इनफैक्ट अगर देखो तो 2012 में, 2011-12 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ग्रीस इकॉनमी को लेकर के, ग्रीस की इकॉनमी का इफेक्ट, अगर भारत की इकॉनमी खराब हो गई, उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया था ग्रीस की इकॉनमी खराब है इसलिए भारत की इकॉनमी पे उसका असर पड़ा। ठीक है, हम कंपेयर करने जाएंगे ना, तो पिछले 4 साल, 3 साल अगर देखा, 4 साल, 3 साल क्यों, 2020 में कोविड आया था मार्च में, उसके बाद 2022 में यूक्रेन रसिया वार हुआ, यूक्रेन, लेकिन हमारी इकॉनमी पे कितना असर पड़ा है उसका अगर देखा जाए तो ये मेजर इवेंट है, मतलब मच बिगर देन ग्रीस की इकॉनमी में जो भी प्रॉब्लम, हाँ, that led to the gas crisis in the Europe में, पूरे यूरोप हो गया because of the war, sanctions डाल दिए के, कोविड की वजह से पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन का जो हाल है देख रहे हो, सप्लाई चेन सब जगह प्रॉब्लम में है। इनफैक्ट देखा जाए तो एक पर्टिकुलर पीरियड में दुनिया के तमाम देश भारत पे डिपेंड कर रहे थे, गेहूं के लिए, चावल के लिए, सब्जियों के लिए। क्यों? क्योंकि मेजर सप्लायर थे रसिया और यूक्रेन, खासकर फूड के। तो वहां से चल करके इस स्टेज पे आना, वो भी तब जब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन था पूरे वर्ल्ड के लिए। तो ऑफकोर्स भारत की इकॉनमी तो बढ़ी ही है। ये जो जैम ट्रिनिटी की बात बार बार होती है, इसका जो इफेक्ट है ना, वो ह्यूमेंकस, मतलब अगर देखो तो जैसे जनधन, अगर कोई हमारे यहाँ का प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड स्टेज पे खड़ा होकर के ये कहे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 54 करोड़ अकाउंट खोले गए हैं, उसका इफेक्ट समझ रहे हो? यूएस कितना पॉपुलेशन है? 30, 31, 32 करोड़। यूरोप के तमाम देश 6 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़। ठीक है, और यहाँ 54 करोड़ जनधन अकाउंट की बात हो रही है। उसमें से मोर देन 50% women have। हाँ, 54 करोड़। अच्छा, याद है अभी एक वीडियो हम सबने देखा है, मोदी जी यह कहते हैं कि ऐसा नहीं है जी, हमारे यहाँ कोई भी काम बिना प्लानिंग के नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक दिन मन में आया कि हमको जनधन अकाउंट खोलना है, जब तक उनको पता नहीं है कि हम क्यों खोल रहे हैं। जनधन अकाउंट से द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी जो होने लगा, इसीलिए द सब्सिडी ट्रांसफर, द लूप होल्स गेट, द जो भी लीक्स थी वो प्लग होने लगी, गेटिंग प्लग। तो ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ टर्न उनको एक दिन सपना आया होगा कि हमको जनधन अकाउंट, नहीं, प्रॉपर प्लानिंग है इसके पीछे। तो प्रॉपर प्लानिंग ये दिखाता है कि सरकार की मंशा क्या है। जिस इसी व्हाइट पेपर के पिछले वाले भाग में बोलते मैंने कहा था ना कि भाई अल्टीमेटली
मामला वहाँ जाके अटकता है कि जो रूलिंग कोलिशन है, रूलिंग पार्टी है, उस गवर्नमेंट की मंशा क्या है। अगर मंशा भारत के आम नागरिक को सुविधा पहुंचाने की होती तो जनधन अकाउंट की बात कांग्रेस की पहले की सरकारें जरूर करती। आप इस बात में तो प्राइड ले रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, लेकिन आप इस पे बात नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने केवल बैंकों का नेशनलाइजेशन ही नहीं किया, उन्होंने आम आदमी को अकाउंट भी खुलवाया। नहीं, क्यों 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 नहीं? इसलिए कि इमेजिनेशन नहीं कि आप उस कल्पना में जा ही नहीं सकते हैं कि हमको हमारा ऑब्जेक्टिव है एक आम। ठीक है, हर युग में रिसोर्सेज की कमी होगी, लेकिन लीडरशिप तो वही है जो अवेलेबल रिसोर्सेज में, और इंटेंशन पे तो होना चाहिए फाइनेंशियली, एग्जैक्टली, एंड फाइनेंशियली एम्पावर्ड आपकी जनता हो जाएगी तो आपको ये भी तो डर है कि वंस पीपल गेट एम्पावर्ड दे मे स्टॉप वोटिंग फॉर यू। एग्जैक्टली, क्योंकि उनको ज्यादा समझ आने लगेगी। यही है वो जो मैंने पहले कहा ना कि कंट्रोलिंग नेचर जो है, कि हमको चीजें कंट्रोल करनी है। ठीक है, सो जिस जनधन आधार और मोबाइल की हम बात, अब जैसे मोबाइल की है बात, अगर ये थ्रू प्रॉपर प्लानिंग किया गया है तो उसका एक तो ऑब्जेक्टिव हो गया, उस ऑब्जेक्टिव में विश्वास है तभी उसका रिजल्ट मिल रहा है। डिजिटल इकोनॉमी जिसकी हम बात कर रहे हैं, आज इंडिया के जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन वर्ल्ड में किसी और नेशन में नहीं होते हैं, चाइना में नहीं होते हैं, यूएस में नहीं होते हैं, और जब बाहर से लोग आते हैं इंक्लूडिंग वर्ल्ड लीडर्स, जो नाटो कंट्रीज हैं उनके प्रेसिडेंट आते हैं तो उनको यूपीआई दिखाया जाता है तो वो चकित रह जाते हैं कि ये क्या है ना। उसका जो इंडियन इकोनॉमी के फॉर्मलाइजेशन में जो रोल है, अब जैसे फॉर्मलाइजेशन क्यों, राहुल गांधी और उनके मिनियंस कहते हैं ना आपने डिमोनेटाइजेशन करके इकोनॉमी खराब कर दी, आपको कुछ, ओ भाई आपको ही पता है सब कुछ। डिमोनेटाइजेशन जरूरत थी। आप ये जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हुआ है 2017 से, उसमें उन्हीं चीजों का रोल है जिसे आप रोज गाली देते हैं। राहुल गांधी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं और डिमोनेटाइजेशन के लिए तो जो कहते हैं हम सब जानते हैं, लेकिन इन दो स्टेप का इंडिया की इकोनॉमी के फॉर्मलाइजेशन में जो हाथ है, जिसकी वजह से आज हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है ना, soon to be the third largest, करेक्ट है, तो 5वें नंबर की, तो वो ये फॉर्मलाइजेशन नहीं होता। तो सारा कुछ इंटेंशन पे है। यही इंटेंशन एक गवर्नमेंट से 2.5 लाख सेल कंपनियों को एक ऑर्डर में स्टेप डाउन करवाने का, वो जो कर सकते हो मॉरल पावर जो है, पॉलिटिकल विल जो है वो देता है। उसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर हर चीज पे कितना कंट्रोल आया है। ठीक है, यही मॉरल पावर एक गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो डिमोनेटाइजेशन जैसा स्टेप करता है, क्योंकि इसको लेकर के, खासकर करेंसी को लेकर के मोदी जी पहले भी बोल चुके हैं 2016 के एक इंटरव्यू में कि भाई हम व्हाइट पेपर इसलिए नहीं लाना हम चाहते थे, एक बार हमने विचार किया, लेकिन इसलिए नहीं ले आए क्योंकि हमें लगा कि भाई बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट हो जाएगा लोगों को। जब ये लगेगा तो फिर वहाँ से निकालना जो है एक पूरे, क्योंकि इकोनॉमी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको उठा करके कहीं रख दिया, उसके तो इतने सारे कंपोनेंट हैं, इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, बैंक्स हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और बाहर के फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, टैक्स कलेक्टर है, सीबीडी, मतलब इतने सारे कंपोनेंट हैं। और आप अगर अचानक कह दें कि हमारे यहाँ ये चीज़ अच्छी नहीं है तो क्या होगा उसका इफेक्ट, तो वो है कि इसकी वजह से ये जैम ट्रिनिटी का जो रोल है फॉर्मलाइजेशन में, इंडियन इकोनॉमी के फॉर्मलाइजेशन में, उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। आज तुम जीएसटी कलेक्शन देखो ना, जीएसटी कलेक्शन देखो, जीएसटी कलेक्शन
पिछले 8 महीने से लगातार किस लेवल को क्रॉस करके वो कलेक्ट हो रहे हैं टैक्सेस। ये कैसे हुआ है? ये इन्हीं सब स्टेप का नतीजा है। जिस सेल कंपनियों को स्टेप डाउन करने के ऑर्डर की बात मैं कर रहा हूँ, हम अगर दुनिया की इकोनॉमी के साथ दुनिया के जो लॉज हैं उनको कंप्लाई करना चाहते हैं तो ये स्टेप हमें लेना था। सवाल ये है कि एक गवर्नमेंट का मुखिया, उसके पास शायद वो पावर नहीं रहता है कि वो ले, वहीं दूसरे गवर्नमेंट उसके पास है मॉरल पावर कि हमने एक ही ऑर्डर में 2.5 लाख कंपनियां उड़ा दी। ठीक है, अगर वो कंपनियां उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था इस तरह के ट्रांजैक्शन में, तो वो आएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, हम उनको छोड़ देंगे। राइट राइट। ऑल्सो आई थिंक द वन ऑफ ये ना, ऐसे वी कांट लुक एट दीज थिंग्स, ऑल दीज रिफॉर्म्स एंड चेंजेस इन साइलो, कि इनकी सबकी एक आगे की इफेक्ट होती है, द डोमिनोज इफेक्ट सो टू से, कि इफ वन थिंग इज स्टार्टिंग इट इज़ हैविंग अ फर्दर इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये डिजिटल इकोनॉमी की ये सब हुआ है, एट द सेम टाइम देयर हैज बीन द इंसॉल्वेंसी बिल वो आए हैं, हाँ बिल्कुल, द एनपीएस हैव बीन क्लियर्ड आउट, एनपीए का बैंकिंग। सो आप एक चीज सॉल्व करने निकल रहे हो तो साथ तो में और 4 बहुत सारी चीजें भी हाँ, सॉल्व हो रही हैं। जस्ट इमेजिन करो, जिस जियोपॉलिटिक्स के इफेक्ट की अपने इकोनॉमी पे मैं बात कर रहा हूँ, इमेजिन करो हमारे पास यूपीआई नहीं होता। ये मैं कहाँ से कह रहा हूँ? ये मैं रसिया पे जो क्लैंपिंग हुई, क्योंकि रसिया आपका स्विफ्ट यूज करता था डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए, मनी ट्रांसफर के लिए, स्विफ्ट उसका प्रोडक्ट नहीं था, तो आपने जो कुछ भी सैंक्शन लगाया उसके ऊपर वो इफेक्टिव रहा। हमको मतलब भारत को दुनिया के कितने देश, कितने डेवलप्ड नेशन इंक्लूडिंग यूएस हमेशा किसी न किसी स्टेप पे सैंक्शन लगाने के लिए तैयार। हमारे पास यूपीआई नहीं रहता, मैं बता रहा हूँ, हालांकि ये इमेजिनरी एक हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हमें बड़ी तकलीफ होती अगर यूपीआई नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि आत्मनिर्भरता ही है ये, हम अगर काफ़ी एक बड़े पॉइंट तक अगर डीकपल कर पाए हैं बाकी इकोनॉमी से, जो कंट्रोलिंग इकोनॉमी है वर्ल्ड की, तो उसका कारण है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, तब डीकपल कर पाए हैं। यही यूपीआई नहीं होता हमारी दुर्गत हो जानी थी। मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि फलाने डेमोक्रेसी की कमी है जी, ये सैंक्शन लगा दो, इस चीज़ की कमी है, ये लगा। आज हालत ये है कि हमारा यूपीआई विदेशों में इस्तेमाल हो रहा है, दुबई में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, सब जगह हाँ, हो रहा है। और ये जो है ना इफेक्ट देखो, नॉट ओनली यूपीआई, हमारी करेंसी कितने देशों में एक्सेप्ट हो रही है इस समय, हो रही है ना। इंडियन रूपी ट्रेड हो रहा है, लंका से लेकर के मिडिल ईस्ट के देशों तक, रशिया के साथ हमारा तेल का ट्रांजैक्शन सारे रूपी ट्रेड में हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? वो इसीलिए कि हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। वी आर इन द पोजीशन वेयर वी कैन बी इन अ नेगोशिएटिंग, एक चिप रहती है, बार्गेनिंग चिप है हमारे पास, बिल्कुल रहती है। सो ये है, इसका ये इफेक्ट है फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी का, जहाँ पे हम जो डेवलप्ड नेशन है उनके साथ अपने हित में नेगोशिएट कर सकते हैं, और उनको भी ये रियलाइजेशन हो रहा है कि भैया इंडियन इकोनॉमी जो है 2013 में जहाँ थी वहाँ से काफ़ी आगे चली गई है, और हम उसके हिसाब से ही हमें इज्जत मिल रही है। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम बोलो, वर्ल्ड बैंक बोलो, IMF बोलो, कहीं भी इंडिपेंडेंट रेटिंग एजेंसीज बोलो, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोलो, हमारे सोवरेन बॉन्ड अब ट्रेड होंगे, उनको पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर लिया गया है, शायद इस साल से होंगे। तो ये चीज़ें जो हैं इसका इफेक्ट है ये। और अगर मोदी जी ये पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि हमारे तीसरे टर्म में हम थर्ड इकॉनमी हो जाएंगे, जिस थर्ड इकॉनमी जिस पोजीशन पे पहुंचने के लिए आपने 2044 का समय मांगा था 2014 में,
उसमें हम शायद 2030 से पहले पहुंच जाएं। तो ये चीज़ आती कहाँ से है? ये चीज़ केवल फिनेंशियल और मनी मैनेजमेंट से नहीं आती है। इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको एम्पावर किया जा रहा है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो हैं वो ढंग से प्लेस में रखे जा रहे हैं। ये वहाँ से, ये कॉन्फिडेंस वहाँ से आता है कि नहीं, जब फॉर्मलाइजेशन हो गया है, बेटर डेटा मैनेजमेंट हो रहा है, रियल टाइम में हमें चीज़ों का इफेक्ट पता चल रहा है, हम अपनी पॉलिसी को जो एंड ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं उसके हिसाब से लगातार देख रहे हैं, उसमें क्या ज़रूरत है उसको उसी तरह से उस पर काम हो रहा है। तुम यही देखो ना, कोविड के बाद जो मैनेजमेंट है इकोनॉमी की, लोगों ने यही डिमांड किया था ना, वो जी कैश प्रिंट करके दे दीजिए। हम आज अगर इन्फ्लेशन में बेटर ऑफ हैं कंपेयर टू many other countries, because of we didn't give free money. हम हैं आज, हम उस पोजीशन में हैं जहाँ पे हमारी सरकार ये कहती है कि नहीं, हमारे अपने कंजम्पशन के लिए प्याज की जरूरत है, हम अभी एक्सपोर्ट रोक देंगे, है ना। तो इन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है ये ऐसे। अब जैसे यही सोचो, डिमोनेटाइजेशन ही देखो, मुझे डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था तो मैं अरुणाचल में था और 8 बजे अनाउंसमेंट आया और मेरे ऑफिस से फ़ोन आया कि आपने देखा क्या हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले डिमोनेटाइजेशन हो गया। मुझे ईटानगर से गुवाहाटी आना था। अच्छा, उसी दिन मैंने ना, कह रही पर्सनल बात है, लेकिन उसी दिन हमने कुछ कमोडिटी खरीदी थी। हमें पता था कि इसकी प्राइस गिर जाएगी कल, कम से कम 20% गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि कैश नहीं रहेगा। कैश नहीं रहेगा तो कैश का जो इफेक्ट होता है प्राइसेस पे, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि कैश अगर नहीं रहेगा हाथ में तो प्राइसेस उस हिसाब से नहीं बढ़ेंगे, और वो दिखाई दिया। इमेजिन करो कि कितना इनफॉर्मल इकॉनमी थी, उसका साइज क्या था 2017-16 से पहले, उस इकॉनमी का साइज क्या था। और वो सारे जो कैश ट्रांजैक्शन बंद हुए हैं, ऐड हुए हैं तो इसी में ना, इंडियन इकॉनमी में ऐड हुए हैं ना, साइज उसकी वजह से ऊपर, उसकी वजह से भी ऊपर गया। तो वो दिखाई देता है कि आपकी मंशा क्या है। आप आम आदमी को, आम भारतीय को राहत पहुंचाना चाहते हैं कि नहीं पहुंचाना चाहते हैं। आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिसका इफेक्ट पॉजिटिव रहे उसके ऊपर। अगर वो है तो तरीके आप निकालेंगे, जो कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट कर रही है, पिछले 10 साल से वही कर रही है। भले अपोजिशन जो है वो उनका मजाक उड़ाए कि आपको भाई आप कह रहे हैं कि आपको इकॉनमी की समझ नहीं है। चलो मैं इसी बात से शुरू करता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को इकॉनमी कैसे चलाई जाती है उसकी समझ नहीं है। समझ नहीं है तब तो ये हाल है कि हम 10 नंबर की इकॉनमी से 5 नंबर की इकॉनमी में चले आए हैं। समझ रहती तो क्या हो जाता। तो आपके जो लोग थे उनको कितनी समझ थी कि उन्होंने अच्छी खासी इकॉनमी जो मिली थी वाजपेयी गवर्नमेंट से उसको बिगाड़ दिया। तो बात तो इंटेंशन की है। जब मजाक की बात होती है ना, when we talk about everyone making fun of Modi government about certain aspects, सबसे एक तरह से शर्मनाक ये है कि they make fun of his शौचालय वाला जो मिशन था, द टॉयलेट, घर घर टॉयलेट वाला मिशन। they make fun of कि आप दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, चांद पे जा रही है और आप टॉयलेट बना रहे हैं। चांद पे तो हम लोग भी गए, चांद पे तो हम लोग भी गए, लेकिन ये द ऑडेसिटी ऑफ मेकिंग फन ऑफ लैक ऑफ टॉयलेट्स व्हेन 70 इयर्स में आप ही की सरकार सबसे ज्यादा साल रही है, बिल्कुल रही है। आपका तो गरीबी हटाओ नारा भी रहा है। डिस्पाइट दैट अगर शौचालय नहीं बने हैं तो ये आपको शर्म आनी चाहिए कि ये हो रहा है। जैसा मैंने कहा ना, फिलॉसफी क्या है गवर्नमेंट चलाने की, कि गरीबी हटाओ एक नारा है। आपने किसी से एक लाइन गरीबी हटाओ, आप किससे कह रहे हैं हटाने के लिए? भाई आप किससे कह रहे हैं गरीबी हटाओ? आपको करना है।
तो ये गरीबी हटाओ तो जनता को आपके सामने आके कहना चाहिए था कि गरीबी हटाओ। आप अपने कवि से नारा लिखवा रहे हैं। ये इंदिरा गांधी के समय में हुआ था और मोस्ट प्रोबेबली एक कांग्रेस के नेता थे श्रीकांत वर्मा, जिनके बेटे हैं अभिषेक वर्मा, जो दलाल हैं हथियारों के और जेल में बंद हैं अभी। ठीक है। सो उन्होंने ये नारा लिखा था। ठीक है। तो आप किससे कर रहे हैं गरीबी हटाओ? सरकार में आप हैं, आप खुद से कर रहे हैं कि गरीबी हटाओ? क्यों कह रहे हैं? तो नारा एक बात है, जो मैंने उसमें कहा ना कि महात्मा गांधी के इस वाक्य को आपकी मार्केटिंग आपने 50, 60, 70 साल की कि भारत गांव में बसता है। सवाल यह है कि उस गांव के लिए आपने किया क्या? हम लोगों के हिंदी साहित्य में जिस किताब की बड़ी बात होती है वो राग दरबारी। राग दरबारी इज अबाउट द सिस्टम created during after independence during Congress era। 1965 में छपी थी किताब, ब्रिलियंट किताब। लेखक को श्रीलाल शुक्ल थे, वो खुद अफसर थे उसी सरकार में। ठीक है। उसमें जिन जिन मुद्दों को उठाया गया था, आपने उन मुद्दों की कभी बात नहीं की। उसमें शिक्षा व्यवस्था से लेकर के हर चीज़ के बारे में कि भ्रष्टाचार कैसे फैला हुआ है, हर चीज़ के बारे में बात की गई थी। तो आप उनकी किताब को सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन जिन मुद्दों को उठाया गया आप उस पर बात नहीं करना चाहते। तो कांग्रेस का ये कल्चर है। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, हम आपको साहित्य अकादमी दे देते हैं, खुश रहिए, लेकिन आपने जो मुद्दे उठाए हैं उसके बारे में बात मत कीजिएगा प्लीज। तो वो वहां से आता है। वो जो है वो फिलॉसफी जो है रूल करने की गवर्नेंस देना और रूल करना दो अलग अलग बात है। आप अच्छी गवर्नेंस देने के लिए आए हैं, आपको देश ने वोट दिया है बढ़िया गवर्नमेंट देने के लिए, रूल करने के लिए नहीं। आपने रूल किया है कि हम हर चीज को कंट्रोल करके रखें, गैस को। हम ये जो लाइसेंस परमिट राज जिसकी बात होती है ना, बार बार होती है, पिछले 70 साल से होती ही रही है लाइसेंस परमिट राज। सो लाइसेंस परमिट राज वो कॉन्सेप्ट ही कंट्रोल करने का। अबेंडेंस का कोई कॉन्सेप्ट कांग्रेस के रिजीम में रहा ही नहीं। ठीक है। सो ये चीज है, और वो आता वहीं से है कि भाई हम आम आदमी के लिए क्या क्रिएट करना चाहते हैं, किस तरह की। वही है ना कि आम आदमी के लिए व्हाट लाइक दैट्स आल्सो व्हाट द वाइट पेपर सेज कि उन्होंने रोड्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, लॉजिस्टिक्स का डेवलपमेंट हुआ। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं तो यू हैव टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम कि आपकी प्रोडक्ट्स, आप मैन्युफैक्चरर को इंसेंटिव दे टू कम एंड इन्वेस्ट इन योर कंट्री, योर स्टेट, और इवेंचुअली जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं आप उनको एक्सपोर्ट या डोमेस्टिक यूजेज के लिए अगर आपको आगे ट्रांसपोर्ट करना है, यू हैव टू बिल्ड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जैसे यही है, जिस भारत के गांव में बसने की बात महात्मा गांधी करते थे, उसी भारत को ले लो। एक इतना बड़ा इलाका नॉर्थ ईस्ट है, कई दशक तक कटा रहा। टिरेनी ऑफ डिस्टेंस से बहुत फेमसली बोला है। राजदीप सरदेसाई ने बोला है। ठीक है। 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने ढोला सदिया ब्रिज का इनॉग्रेशन किया। ठीक है। ब्रह्मपुत्र पे है ब्रिज। हम जब अपर आसाम तिनसुकिया से ईस्ट अरुणाचल में इंटर करते, तुम सोचो अरुणाचल के जो हमारे जान पहचान के लोग हैं वो कहते थे कि भैया जब हमें मुंबई जाना रहता, कलकत्ता जाना रहता, तो हम 2 दिन से सोचते कि परसों हमको नदी क्रॉस करना है। वो ब्रिज कितना बड़ा है, ब्रह्मपुत्र तो वैसे ही उसका पार्ट बहुत चौड़ा होता है, 10 किलोमीटर का ब्रिज है वो। कभी किसी के मन में नहीं आया कि ये एक प्रोजेक्ट है जिसको कंप्लीट किया जाए।
तो आप जिस रूरल इंडिया महात्मा इनफैक्ट आपने रूरल इंडिया की मार्केटिंग नहीं की, मार्केटिंग महात्मा गांधी की। हालांकि जरूरत नहीं है, महात्मा इतने बड़े व्यक्ति हैं कि उनको किसी की मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उनके साये में रह करके हर चीज को जस्टिफाई करते रहे। आज भी करते रहते आज भी करते। बोगीबील ब्रिज जो है वो भी वही आसाम को अरुणाचल से जोड़ता है। देवेगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री थे तब उसका सर्वे हुआ था, तब वो प्रोजेक्ट पास हुआ था गवर्नमेंट से कि ये एक ब्रिज बनना है जिसकी वजह से रेल कनेक्टिविटी इन्हेंस हो जाएगी। तुम सोचो ना, 14 घंटा 15 घंटा जिस दूरी को तय करने में लगता था, अब वो 3.5 घंटे में तय हो जाए। क्यों? क्योंकि एक नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई जिसको लगा कि अरे ये प्रोजेक्ट जरूरी है, कि आप इतने बड़े एरिया को डिप्राइव कर रहे हैं कनेक्टिविटी से। अगर भारत गांव में बसता है और इस फिलॉसफी में आपकी सच में आस्था है, तो किसी नरेंद्र मोदी को इतने सालों बाद आकर के किसान रेल चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? राइट, किसान रेल, ट्रू ट्रू। क्यों पड़ी? आपके मन में क्यों नहीं आया कि अच्छा यार, कनेक्टिविटी की जरूरत तो उन लोगों को भी है जो इतने दूर दूर तक गांव में रहते हैं। पेरिसेबल गुड्स वो पैदा कर रहे हैं, सब्जियां वो पैदा कर रहे हैं, फल वो पैदा कर रहे हैं, जो कैश क्रॉप होता है, हल्दी से लेकर के हर चीज़ वो, तो उनको थोड़ी तो सुविधा दो कि समय पे उनकी यही जिस सप्लाई चेन को मजबूत करने की बात मैंने पिछले वाले अपना जब इसकी एनालिसिस कर रहे थे उसमें जो बोला था, वही चीज़ है कि जो फिलॉसफी है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की, कांग्रेस की फिलॉसफी ये है कि फिनेंशियल मैकेनिज्म जो है दैट इज इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट। आप इंटरेस्ट रेट के सहारे इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहते हैं। बीजेपoraz का सिस्टम ये है कि वो अबेंडेंस क्रिएट करके इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मनसा की बात है कि आप सच में सुविधा देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। राइट, कनेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट वहीं से आता है। राइट, दैट्स ऑल्सो व्हाट दे से कि जब यूपीए की लास्ट 5 years ऑफ द रादर यूपीए 2, जहाँ इन्फ्लेशन का एवरेज इन्फ्लेशन वाज इन डबल डिजिट्स, हाँ, तो वहाँ से लेके प्राइजेस को कंट्रोल करना इन 10 years डिस्पाइट एवरीथिंग गोइंग ऑन रॉन्ग इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, जैसे कोविड पैंडेमिक आ गया, मल्टीपल थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड। एंड ऐसा तो नहीं है कि इंडिया ऐसे आइसोलेटेड वर्ल्ड में ऐसे जी रहे हैं कि हम पे ये असर नहीं हो रही है। ऑब्वियसली एवरीथिंग हैज एन इम्पैक्ट ऑन अस एज वेल। एक चीज देखो, इसी से रिलेटेड एक बात देखो, आप जब सत्ता में थे आपने भारत की मैन्युफैक्चरिंग बिगाड़ दी। चाइना के साथ हमारा ट्रेड जब वाजपेयी जी छोड़ के गए थे तब क्या था, आपने क्या किया? और आज जब आप सत्ता में नहीं है, अपोजिशन में हैं, तो मोदी सरकार को उलाहना दे रहे हैं कि आप चाइना, अच्छा दोनों तरह से उलाहना दे रहे हैं कि आप चाइना जैसे नहीं बन सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप चाइना के साथ ट्रेड क्यों कर रहे हैं? भाई आपने उसकी नींव रखी है। एंड दे नेवर टॉक अबाउट देयर पार्टीज, कांग्रेस का जो MOU है सीसीपी के साथ, तो दैट इज नेवर टॉक्ड अबाउट। वो तो बहुत ही सीक्रेटली स्टैश्ड अवे है। सो वो चीज जो है ना कि क्या हो गया, मतलब कितना टाइम लगा अपने यहाँ सेल फोन मैन्युफैक्चरिंग में, आज हम कई लाख करोड़ का सेल फोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आईफोन भारत में बन रहा है, हैं? कितने साल लगे? आप उलाहना भी दें, खुद कुछ करें भी ना, तो उलाहना ये वही कॉन्सेप्ट है, गरीबी हटाओ, जो मैंने कहा ना भाई, किससे हटाने के लिए बोल रहे हैं? आपका काम है हटाना यार। अल्टीमेटली सारा कुछ घूम फिर के वही आता है कि गवर्नेंस देने का आप किस रास्ते से जा करके गवर्नमेंट देना चाहते हैं, कैसी गवर्नमेंट देना चाहते हैं? वैसी जिसे सब याद रखे, या वैसे जिसे सब याद तो रखें लेकिन गलत वजह से याद रखें, स्कैम के लिए याद रखें। True. I think one thing we can both agree on is कि
in as per the white paper as well, now that we have white paper as data backed कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से कह रहे हैं। मैं हमेशा इस विश्वास, मेरा हमेशा इस चीज़ में विश्वास है कि सरकार में जो लोग हैं उनका प्रयास हमेशा यही रहे कि हम जो भी बोलेंगे ऑफिशियली बोलेंगे, हम देर से बोलेंगे। कोई यहाँ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने के लिए नहीं आया है। अगर कोई सेंसिटिव गवर्नमेंट है, सेंसिबल गवर्नमेंट है, तो हम जो भी बोलेंगे बिना डेटा के नहीं बोलेंगे और फॉर्मली बोलेंगे, जिसे औपचारिक डॉक्यूमेंट कहते हैं। सो अगर वाइट पेपर भले ही 10 साल बाद आया, लेकिन ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। देश को पता रहना चाहिए कि हमें क्या मिला था और हम आगे कहाँ ले गए। So we've gone from the policy paralysis to the political will of not only implementing policies but also implementing reforms. It's a huge leap to have happened. एक चीज देखो, मतलब अगर इकोनॉमी की बात है, रेलवे का जो रोल है, रेलवे की सर्विस की डिलीवरी में पिछले 10 साल में जो इम्प्रूवमेंट हुए, सफाई से लेकर के हर स्टेशन को नया बनाना, हर स्टेशन पे अगर कोई थोड़ा बड़ा स्टेशन है तो वहाँ तुमको एस्केलेटर मिल रहा है। ये कहाँ से आया होगा? ये आया वहीं से होगा ना कि यार हमारा इंटेंशन है कि आम आदमी को थोड़ी सुविधा हम दे सके। सारी सुविधा कोई गवर्नमेंट नहीं दे सकती, कोई डेवलप से डेवलप नेशन होगा नहीं दे सकते। इवन जहाँ पे जिसे कहते हैं वेलफेयर सोसाइटी क्रिएट करना, तो वहाँ के लोगों को भी कोई ना कोई तकलीफ होगी, ठीक है, लेकिन इंटेंशन जो है वही काउंट करता है। कि अगर इस गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि भाई हमारे रेलवे के प्लेटफॉर्म जहाँ पे आम आदमी खड़ा रहता है, बैठता है, अपने ट्रेन का वेट करता है, वो अगर थोड़े साफ हैं तो रहने चाहिए। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो जिस पार्टी ने 70 साल चलाया, 60 साल, उसके मन में क्यों नहीं आया? उसके बाद आपने एक लाइन निकाल दिया है कि देखिए राज करना तो कांग्रेस को ही आता है। नहीं। यही दुख भी है कि अरे ये तो प्रूव करते जा रहे हैं कि इन्हें भी राज चलाने आता है, अब हम क्या करें, हम इनको कैसे काउंटर करें? ब्लैक पेपर निकाल के ठीक है। सो वो है, वो इंटेंशन वाली बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आई थिंक दिस हैज़ बीन अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। एक तो वेरी इंपॉर्टेंटली कि हमें हिस्ट्री भूलनी नहीं चाहिए, कभी नहीं। इट्स टेरिफाइंग। अगर वाइट पेपर शुड बी, एवरीवन शुड रीड द वाइट पेपर, कि बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम टू नो कि वेयर वी कम फ्रॉम एंड विच वे वी आर हेडिंग, so that we don't go back to where we came from. Of course. The 10 years of the 10 lost decade is horrifying decade to have lost. बिल्कुल है। जहाँ पे मतलब देखो, ये बात कहने नारे की तरह इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है। आप सच में अच्छी गवर्नेंस देना चाहते हैं, आम भारतीय को उससे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो बड़े प्रयास की ज़रूरत होती है, दिन रात काम करना पड़ता है, ठीक है। और उसके लिए फिर उसमें वो आ जाता है कि रेटरिक कभी भी गवर्नेंस को रिप्लेस नहीं कर सकता। रेटरिक का सहारा अगर तुम स्टेट पॉलिटिक्स में देखो, हमारे बहुत सारे चीफ मिनिस्टर लेते हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके मन में वो आ गया है कि रेटरिक ही गवर्नेंस है। हर बात को पॉलिटिसाइज करना ही असली पॉलिटिक्स है, नहीं। तो वो अंतर है। जिस डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बात करते थे ना, जिस पॉलिटिक्स की, कि भाई देयर इज पॉलिटिक्स एंड देयर इज डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, है ना। तो वो अंतर है, और वो अंतर केवल यूपी और एनडीए की बात नहीं है। वो अंतर जो है वो लीडरशिप का अंतर है। अगर आपका विश्वास है डेमोक्रेसी में, अगर आपका विश्वास भारत में है, भारतीयों में है, तो आपके मन में जरूर आएगा कि इनके लिए हम जरूर कुछ करें। हमको सत्ता मिली है, हम ट्रस्टी हैं इस सत्ता के। हाँ भाई, डेमोक्रेसी में
गवर्नमेंट जो होती है वो जैसे कंपनियों का भाई बेसिक प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न, करेक्ट, ठीक है, कि डायरेक्टर आएंगे जाएंगे, कंट्रोल करने वाले आएंगे जाएंगे, कंपनी रहेगी। उसी तरह का इसमें भी है कि नेता आएंगे जाएंगे, पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन भारत सरकार जो है तो भारत सरकार है, वो तो देश की सरकार है। जब तक वो वाली सोच नहीं आएगी तब तक आप वही कहते रह जाएंगे कि हम दिल्ली से आपके लिए 1 रुपया भेजते हैं तो राइट 15 पैसे ही आपके पास पहुंचते, राइट, वहां पे अंतर। बट ये तो थी 10 साल की बात है। आई थिंक वंस होपफुली लेट्स सी हाउ द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स गो एंड मोदी सरकार वापस आती है और हम फिर उनके नेक्स्ट विजन देखेंगे, व्हाट दे सी फॉर नेक्स्ट 5 years इन दैट टर्म। हम अभी जहाँ पे हैं अब जैसे यही है, मतलब कोई लीनियर, किसी भी इकोनॉमी की लीनियर जर्नी नहीं रहती है, सेटबैक्स आते हैं, कहीं पे वो रुकती है, नेचुरल डिजास्टर आते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। जो लीडरशिप है उसका काम है उस सबको इन चीज़ों को फेस करते हुए आगे ले जाना, नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना। अब जैसे मतलब जिसकी यूपीए और एनडीए का कंपैरिजन लोग कर रहे हैं कि यूपीए 1 और 2 के दौरान जो स्लो डाउन हो गया डेवलपमेंट, जीडीपी, वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि आप ऐड नहीं कर सके जो वाजपेयी गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया हुआ, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा। आपने ऐड तो किया नहीं, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर नीचे आ गया आपकी टोटल स्पेंडिंग में। इवन मैं एक चीज़ बताता हूँ, इंटेंशन मैटर क्यों करता है। ये जो फिस्कल प्रूडेंस है गवर्नेंस में पहली बार वाजपेयी जी ले आए कि भाई स्पेंडिंग को लेकर के एक प्रूडेंस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों कि पहले की सरकार को समझ में नहीं आया कि नहीं ये जरूरी चीज़ है। वाजपेयी जी को ही क्यों समझ में आया, या उनकी सरकार के लोगों को ही क्यों समझ में आया, ठीक है। तो ये चीज़ें काउंट करती हैं। आप रेगुलेटरी मैकेनिज्म को डॉज कर जाइए, स्कैम कर दीजिए, सब कर दीजिए जो कि आपने किया, तो ये हमेशा रहेगा कि भाई अंतर क्या है, आपने कहाँ से लिया था। जब यूपीए 1 आया था, कभी जाओ मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस की वेबसाइट पे देखो कि टोटल स्पेंडिंग में सरकार के अपने इनकम का और बारोइंग का क्या प्रोपोर्शन था जब वाजपेयी छोड़ के गए थे। और जब यूपीए 2 छोड़ के गए ये लोग, तो सीधा वही फिगर रिवर्स हो गया था। 67 इंटरनल अक्रूवल जो है टैक्स कलेक्शन से, 33 वाजपेयी जी के समय में 33% बोरोइंग से, और जब यूपीए 2 गया तो 33% टैक्स कलेक्शन, 67% बोरोइंग से। मैं एग्जैक्ट फिगर की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ और होगा फिगर, बट इस तरह का है प्रपोर्शन। वो क्यों हुआ होगा? वाइट पेपर में एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग की बात की गई है। एवरेज बोरोइंग यूपीए के दौरान जो बढ़ा है कंपाउंडेड रेट मेरे ख्याल से 21% के हिसाब से बढ़ा है। हमारी इकॉनमी 10 साल पहले जहां से थी वहां से ऊपर चली गई। हमारा जो अभी बोरोइंग की बात हो रही थी ना, लेकिन हमारी बोरोइंग जो है एक्सटर्नल बोरोइंग कम हुई है। ये क्यों? ये वही इंटेंशन की बात है कि भाई हम अगर कोई सरकार या उसका लीडर भारतीय जो उसको जो सत्ता मिलती है वो खुद को उसका ट्रस्टी समझेगा तो वो इसी तरह से मैनेज करेगा, लेकिन अगर मालिक समझेगा तो इस तरह से मैनेज नहीं हो पाएगा। और यही अंतर है एनडीए और यूपीए में। राइट। बट लेट्स सी हाउ थिंग्स गो इन फ्यू वीक्स एंड जब द थर्ड टर्म में जब मोदी सरकार आती है तो हम देखते हैं कि उनकी इकोनॉमी को लेके क्या पॉलिसीज हैं, एंड विल कम बैक रिविजिट दिस टॉपिक अगेन इन फ्यू वीक्स टाइम। And on that note, thank you so much for joining us on this white paper on Indian economy, and hope you had a great session and we had great fun.
Thank you so much for joining us.